और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने जलवायु परिवर्तन पर एक कार्यशाला में शामिल हुए। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन फाइनेंसिंग फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड कार्बन न्यूट्रल JNK के विषय पर हुए इस कार्यशाला से संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अरुण मेहता ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक समस्या है और हम इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें PM द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हमें सरल और योग्य तरीके से पंचायतों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है और इस वित्त कोई समस्या नहीं है। What is important for JNK and absolutely important is adaptation. And adaptation has to be communicated in a manner which is simple and which connects with people. And this is very fundamental. And I'll give you one example. We had started a program called 6,136,100 ponds. And that was adaptation, to my mind. And then Amrit Sarovar was launched by Honorable Prime Minister last year. JNK was the first one to complete 75 Amrit Sarovars in the country, in each district. So we are the first. It's become a habit for JNK to be amongst the leaders. So we were the leaders. And at the moment, though we are only 1% of the population, we are third in the country in terms of absolute numbers. But in terms of what we have committed, we are on the total number of commitment, we are second. But in terms of completion of the objective, we are first. We did it well ahead of the timeline that was given to us. So that should encourage you, Professor Ravindranath. At this point of time, we do what we say, and we don't say what we do not intend to be doing. So that's a change that has happened. And very fundamentally, Amrit Sarovar is a good example of how do you adapt. Bringing moisture in areas which didn't have that level of moisture, it rejuvenates that area. Very simple but very effective technique of adaptation. Har ghar haryali, har gaon haryali, one beat, one guard. All these are parts of adaptation. When we say that bring in a convergence plan at the panchayat level every Monday, which meetings have started now, that's adaptation. Why do you need to adapt? Now, some of you might have known that some of the trees that you found at the lower heights have gone up. That's the first danger sign that you see that things are changing, which you need to be worried about. Then what do you do about it? Similarly, if animals which are not supposed to be coming down, if they start coming down, there is a problem that they're indicating. Now, that's something that who knows better than foresters. सामा पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात 4 अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई में 11 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 50 मवेशियों को भी तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है। पुलिस ने 5 ट्रकों को भी जब्त किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा की गुणवत्ता पर श्रीनगर में शिक्षा अधिकारी खास ध्यान दे रहे हैं। खासतौर पर मैथ्स में बच्चों की रुचि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही छात्रों के बीच सीखने में समान रुचि पैदा करने के लिए कक्षा 10वीं तक के छात्रों को बोर्ड मार्क्स के साथ मैथ्स के 4 बेसिक्स सिखाने का फैसला किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में तालीम पर खास फोकस किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए आपको बता दें कि बोर्ड मार्क्स नियम पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों में सीखने की रुचि पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से आपको बता दें कि सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। और जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट कम रखते हैं या फिर मैथ्स उनकी वीक है, उनके लिए ये खुशखबरी है। ईदगाह पार्क में 2 लोगों की पिटाई के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एहरार सादिक आतिफ फरवानी के खिलाफ सफाकदल थाने में केस दर्ज किया है और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
उधर पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद भाटाधूरिया के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए जंगलों और 1 दर्जन से ज्यादा गांव में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग जारी है। नाका चेकिंग के दौरान शीरी बारामूला में 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। किंग खान, शाहरुख खान और तापसी पन्नू इन दिनों सोनमर्ग में एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। ये गाना किंग खान की अपकमिंग फिल्म डंकी के लिए शूट किया जा रहा है, जिसे मशहूर फिल्मकार राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी, गौरतलब है कि हाल ही में अन्य अभिनेता जिसमें कार्तिक आर्यन और दिगर ने कश्मीर की खूबसूरती और खूबसूरत जगहों का दौरा करते हुए शूटिंग की थी। हम इस टाइम सोनमर्ग में हैं और सोनमर्ग आज सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जो हैं वो यहाँ पे अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करने यहाँ पे आए हैं। एक गाने की सीक्वेंस आज यहाँ थाजवस जो ग्लेशियर आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं वहां पे शूट होगा। शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू होंगी और राजकुमार हिरानी जो हैं वो इस मूवी को बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सोनमर्ग के लिए ये एक काफी अहम एक कदम है यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए और यहाँ पे रोजगार के वसाइल जो हैं वो बढ़ाने के लिए। हमारे साथ चंद एक लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, नाम अपना बताइए और ये बताइए जो शूटिंग्स वगैरह हो रही है, खासतौर जो शाहरुख खान यहाँ पे आए हैं, किस तरह आप देखते हैं, उससे कितना इससे बूस्ट मिल सकता है? सर इसमें बहुत ये यहाँ पर रोजगार का बड़ा चीज हो जाएगा और कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर जो शूटिंग फिल्म का शूटिंग इसमें पहले नहीं होते थे, 30 साल से पहले नहीं हो रही थी शूटिंग इधर। अब शूटिंग होने लगी है। जो बेरोजगार लड़के हैं इधर उनको यहाँ पर रोजगार का चांस मिलने वाला है। और जो यहाँ पर शाहरुख खान आया है शूटिंग करने के लिए सोनमर्ग के लिए, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। इधर यहाँ पर शूटिंग होने चाहिए सर, और इससे रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। खासतौर 70s में शम्मी कपूर वगैरह जब आते थे यहाँ पे तब शूटिंग होती थी, बीच में बंद हो गया था पूरा। अब आपको लगता है जब फिर से शूटिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे फिल्मों की, यहाँ पे मतलब टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ जाएगा? टूरिज्म सर बहुत बढ़ जाएगा इससे। इसमें बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी सर। जो यहाँ पर टूरिज्म है इसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। जब यहाँ पर शूट हो जाएगा पिक्चर का सर, यहाँ पर बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो खुश है आप इससे, शूटिंग से? बहुत खुश है सर इसमें कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स हमने देखा कि काफी खुश हैं लोग इससे। हालांकि सिक्योरिटी के जो हैं वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे मैं आप विजुअल्स में दिखा दूं कि यहाँ पे ही जो चेक पॉइंट है वो बनाया गया है और यहाँ से गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया को तो खास तौर यहाँ इस पॉइंट से आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम जो शाहरुख खान है वो जो विजुअल्स में आप होटल देख सकते हैं, मैं अपने वीजे से कहूंगा कि वो थोड़ा कोशिश करें आपको यहाँ से विजुअल्स दिखाने की। इस होटल में अभी भी वो ठहरे हैं और आपसे कुछ देर बाद जो है वो थाजवस ग्लेशियर की तरफ जाएंगे और वहां पे जो इस गाने की शूटिंग है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। यहाँ पे शूट करने के बाद शाहरुख खान और तापसी पन्नू जो हैं वो श्रीनगर भी जाएंगे और श्रीनगर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद डल लेक में अगले और दिन शूटिंग हो सकती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख G20 इंडिया समिट के तत्वावधान में 24 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेजबानी करने के लिए तैयारी पूरी तरीके से कर चुका है। G20 के नोडल अधिकारी स्वागत विश्वास ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधियों का हवाई अड्डे और होटलों से पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। शाम के दौरान प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा Y20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। तो देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग G20 के रिलेटेड इवेंट्स कर रहे हैं। तो साथ ही में लेह में भी Y20 प्री सबमिट होने जा रहे हैं अप्रैल 26 से लेके अप्रैल 28 तक। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं नोडल ऑफिसर G20 स्वागत विश्वास सर। तो सर जो यहाँ पर जो Y20 का प्री सबमिट होने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। यहाँ पर ये जो G20 समिट हो रहा है पूरे इंडिया में प्रेसिडेंसी, उसके अंदर 3 तरह के मीटिंग्स हो रहे हैं। उसके एक एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग होता है। वो एंगेजमेंट ग्रुप जो
यूथ वाला है वो यहाँ पर ले में होने वाला है। जैसा आपने सही बताया 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक का। तो उसके अंदर तमाम देशों से जो Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और जो इंडियन Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और वहाँ पर तमाम टेक्निकल सेशंस होंगे अलग अलग मुद्दे पे, वहाँ पर डिस्कशंस होंगे और एजेंडा सेटिंग होगी। तो सर ये विजिटिंग जो डेलीगेट्स रहेगा उनको लिए अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा सर? जी, हमारा जो रोल है, जो नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उनके अफसरान यहाँ इस वक्त आए हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी जहाँ से G20 सेक्रेटेरिएट है उनके भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, वहाँ से भी तैयारियां चल रही हैं। लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम लोग यहाँ पर एक होस्ट हैं जो आने वाले डेलीगेट्स और आने वाला जो सारा इंतज़ाम है उसके लिए बेस तैयार करके हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से ये जो मीटिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए और उनका इंगेजमेंट अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी भी तैयारियां करनी है तमाम डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से, चाहे वो खूबसूरती बढ़ाने की हो, चाहे वो होटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो रिसेप्शन हो या लद्दाख का प्रोजेक्शन हो, कल्चरल हेरिटेज दिखाना हो, थोड़ा हमारे जो यूथ का जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे यहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें शोकेस करना, लद्दाख को एक अच्छे लाइट में शोकेस करना, जो लद्दाख है उसको इतने इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने प्रोजेक्ट करना, वो हमारा काम है और वो किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है। राजनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान कभी भी स्थिर नहीं रहा है। वहां के नेताओं का मानसिक दिवालियापन और सेना का जुनून इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर और बिजनेस टाइकून ने अपने हुक्मरान को आईना दिखाया है।
ब्लॉगर का कहना है कि आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है, तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि पाकिस्तानी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त हैं, सिर्फ खाने के टेस्ट में अटके हैं। ब्लॉगर ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि हमें गोद ले लें। ब्लॉगर का कहना है कि कश्मीर भाग्यशाली है कि वो ऐसे देश के साथ है जो दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। बख्श दो यार कश्मीरियों को, वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। अमेरिका को लीड कर रहा है, यूके को लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव। हमारी कौम गुलामी में, बिरयानी। हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, चपली कबाब का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, सलाद कैसे, चना चाट, ये ककड़ी मकड़ी, ये हमारे कौम ऐसी कौम है जिन सोना निकलता है। वाह, ये मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना। फायदा क्या है, उनके साथ होके इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बन गई, नेक्स्ट डे हमने तुमको लीज पे देना है किसी को। वो खुद भिखारी गरीब, पता है पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुक्मरान और मुल्क गरीब, और गरीब दोस्ती हमेशा अमीर से क्यों करता है? ताकि कल इसकी मां बीमार हो जाए, जान गाड़ी की चाबी दो, मां बीमार है, मोटरसाइकिल की चाबी दो, हमेशा ताकि कुछ मांगे। अब हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे हम शेख अल मखतूम पख्तुम शख्तुम को जो है मुबारकबाद देते हैं। क्यों? ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। कामयाब कौमें दोस्ती नहीं करती, वो ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं। भाई अगर तुमने ये चीज लेना नहीं लेना, ओके मैं दूसरे पे भेज दूंगा, जस्ट गेट आउट, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 6,660 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,213 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर 3.53% दर्ज की गई है। वहीं एक्टिव मामले 63 के पार पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा। आज चुनाव को लेकर कल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई थी। बैठक कैबिनेट रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव जीता और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीत कर हैट्रिक लगाएगी। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से शिमला नगर निगम चुनाव पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इस मौके पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व के बदलाव के दौर से गुजर रही है। बीजेपी की हार उन्होंने कहा कि तय है। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भी बताया गया, इसमें भी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूँ आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष
इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ, जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉर्पोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। शिमला से बड़ी खबर है कि नगर निगम चुनाव के दौरान एक बार फिर चार्जशीट का जिन्न निकला है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके संकेत दे दिए हैं, जिसमें पूर्व की जयराम सरकार के दौरान लाई गई कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर जांच कराई जा सकती है। रोहित ठाकुर ने कहा कि कानून के हिसाब से काम होगा। और बड़ी खबर आ रही, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिला फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल। 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई है। फ्रांस के सेनेटर जैकलिन यूस्टेच ब्रीनियो, सेनेटर एल्स जोसेफ और सेनेटर ओलिवियर रिचमैन, सेनेट में सिविल सर्वेंट थियरी मुनियर ने की मुलाकात। इस दौरान दलाई लामा ने उपदेश भी दिया। मुल्क और मजहब के आधार पर पैदा हुआ भेदभाव दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि दया और करुणा का भाव हमें जन्म से ही मिला है। स्कूल में दाखिला लेने के साथ भेदभाव का भाव पैदा हो रहा है। दलाई लामा की तरफ से तमाम बातें कही गई। मैं सुबह उठते ही 8 अरब लोगों की खुशी के बारे में सोचता हूँ। दलाई लामा में उपदेश देते हुए ये बातें कही। आज हरेक को खुशहाल जिंदगी चाहिए। दलाई लामा ने ये तमाम बातें कही। दलाई लामा प्रतिनिधियों से विभिन्न तिब्बती शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का दौरा करेंगे ये तमाम प्रतिनिधिमंडल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दलाई लामा से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, जिसमें 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल रहे। फ्रांस के सेनेटर जैकलिन यूस्टेच ब्रीनियो, सेनेटर एल्स जोसेफ और इसके अलावा सिविल सर्वेंट थियरी मुनियर ने मुलाकात की। इस दौरान दलाई लामा ने उपदेश दिए। उन्होंने मुल्क और मजहब के आधार पर पैदा हुए भेदभाव को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे हैं ट्रोल को लेकर सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इतने बड़े नेता और धर्मगुरु को ट्रोल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना सारा जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। जिसने भी इस प्रकार के ट्रोल किए हैं उसे इस बारे में मनन करना चाहिए। नहीं है, बट अननेसेसरी इतने टॉल लीडर को, इतने बड़े स्पिरिचुअल हस्ती को इस तरीके से उनको घेरा जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया वो इसको दोबारा इस पे मनन करे। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसने सारा जीवन अपना लोगों के लिए समर्पित किया है, कितनी डिफिकल्टी सिचुएशन में वो यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने सदा सभी का मार्गदर्शन किया है, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप, गलत आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ मिनी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। मामला बरोटीवाला के पास हेलीपैड का है, जहां पर 2 सगे भाई चिट्टे के नशे के सेवन में धुत होकर गिरते और झूल रहे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें नशे की हालत में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जो बच्चे हैं वो नशे में है यहाँ पर और हमने इनको घेर के रखा हुआ है, जिस पर तुरंत पुलिस पार्टी यहाँ से गई और उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक थी, जिस पर उनको इमीडिएट जो हॉस्पिटल के लिए हमने शिफ्ट कर दिया ताकि उनको फर्स्ट एड मिल सके। इसके अलावा उनके पास से 2 जो यूज्ड सिरिंजें थी वो भी हमें मिली है और हम मेडिकल करा के आगामी कार्रवाई कर रहे हैं और इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और इनके परिजनों को भी हमने इंटीमेट कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको
हम इस वक्त दे रहे हैं। गुजरात से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है कॉनमैन किरण पटेल मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुजरात से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फर्जी पीएमओ विजिटिंग कार्ड बनाने का उस पर आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कॉनमैन बहरूपिया महाठग जिसे गिरफ्तार पिछले कई हफ्तों पहले किया गया था, जो कि फर्जी पीएमओ के अधिकारी के तौर पर ऐशो आराम की जिंदगी कई महीनों तक जम्मू कश्मीर में गुजारता रहा और उसके बाद जब वो हत्थे चढ़ा तो अब कड़ी से कड़ी मिल रही है और दूसरों की भी गिरफ्तारी हो रही है जो इस कॉनमैन के करीबी या फिर उसे यहां तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए हैं। तो एक और गिरफ्तारी हुई है गुजरात से एक शख्स की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे गुजरात से गिरफ्तार किया है। फर्जी पीएमओ विजिटिंग कार्ड बनाने का इस शख्स पर आरोप लगा है। ईशान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ईशान, ये बताइएगा क्या कुछ जानकारी इस हवाले से मिल रही है? एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है कॉनमैन किरण पटेल मामले को लेकर। कहा जा रहा है कि फर्जी पीएमओ विजिटिंग कार्ड इसी ने बनाया था, आरोप उस पर लग रहे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, फिलहाल आरोप ये जो पीयूष नाम का व्यक्ति है इस पर लग रहा है, जिसका प्रिंटिंग प्रेस जो है गुजरात अहमदाबाद में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको गुजरात से ही गिरफ्तार किया है और उनके आरोप है कि उन्होंने फेक पीएमओ का जो कार्ड था जिसमें लिखा गया था कार्ड पे कि एडिशनल डायरेक्टर है स्ट्रेटेजी एंड कैंपेनिंग पीएमओ ऑफिस न्यू दिल्ली के, ये इन्हीं के प्रिंटिंग प्रेस पर बना था। क्योंकि ये गंभीर समस्या है कि आप किस तरीके से किसी को एक कार्ड बना के देते हैं जिस पर आप पीएमओ दिल्ली का एड्रेस लिखते हैं और बाकी डिटेल्स भी लिखते हैं कि बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो उसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलहाल इस आदमी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से हमने जब सूत्रों से पूछा कि क्या गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस आदमी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनका जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम बताया जा रहा है कि आकांक्षा क्रिएशन है जो गुजरात में है, वहां से ये प्रिंट कार्ड बने थे। तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इसे गिरफ्तार कर अब जम्मू कश्मीर लेकर आएगी? इस हवाले से कोई जानकारी ईशान? जी बिल्कुल, इसको जम्मू कश्मीर लाया जाएगा और इससे जो 10 फेक विजिटिंग कार्ड जो पीएमओ के बरामद हुए थे किरण पटेल से, उसके बाद ही पुलिस ने एक पूरा वेब बिछा दिया था ताकि जो भी इसके साथ उसके जुर्म में मुलविस है या इसके साथ जिसको नॉलेज थी इसके जुर्म की, उनको जो है देखा जाए। उनका फोन भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया था और घर पे भी काफी सारी रेड्स हुई हैं, जिसके बाद कुछ और चीजों का भी खुलासा हुआ है। तो फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन तो जारी है और वहीं दूसरी तरफ से पुलिस ने फिलहाल इस प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया ईशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।